Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 6th of Jan 2021, Wednesday. Inspiration of the day is success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Vaccine, peace, serum, Bharat Bio, close ranks. So, after engaging in a war of words, the chiefs of two India's leading vaccine makers, that is Bharat Biotech and Serum Institute of India, called a truce on Tuesday and pledged to work together for a smooth rollout of COVID-19 vaccines. अगर आपको कल याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि there is a war of words going on between Bharat Biotech and Serum Institute of India's vaccine candidates. दोनों ही कंपनीज के जो वैक्सीन हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल्स हैं अमंग एक्सपर्ट्स, अमंग मेडिकल फ्रेटर्निटी, इवन अमंग द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी एज वेल. बहुत सारे एक्सपर्ट ने क्वेश्चन मार्क रेज किया था कि जिस प्रकार से भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वैक्सीन्स हैं उनको अप्रूवल मिला है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली वेरी रोबस्ट इन नेचर, and because of that both companies and their top management were also involved into war of words in order to promote their vaccine, in order to create the image among the public that their vaccine is more safe in comparison to other. But now this war seems to be ended. Why? Because the chiefs of all companies have decided that they will function in a collaborative manner in order to roll out the COVID-19 vaccine in India smoothly. And in a very joint statement, Bharat Biotech Chairman and Managing Director Mr. Krishna and Serum Chief Executive Officer Mr. Poonawalla said the more important task in the front of them was to save the lives and livelihood of the population in India and the world. तो उनका ये कहना है कि जो भी वैक्सीन आई है दैट इज़ फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गुड. देयर इज़ नो वॉर, देयर शुड बी नो वॉर. बोथ कंपनीज शुड कोलैबोरेट विद ईच अदर in order to get the faster and smooth rollout of the COVID-19 vaccine so that maximum population can have the accessibility as well as the availability of this particular vaccine, and number of lives can be saved so that economy can be returned into the normalcy. और वैक्सीन को रोल आउट को लेकर के एक न्यूज़ और दी हुई थी फ्रंट पेज में, दैट इज़ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर रोल आउट ऑफ COVID-19 वैक्सीन बाय January 13. So the health ministry is all prepared to roll out the COVID-19 vaccine within 10 days for the emergency use authorization, जो कि जिसका लाइसेंस हमें पता है दो कंपनीज को मिल चुका है, एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन को और भारत बायोटेक की वैक्सीन को. तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री इज ऑल प्रिपेयर्ड. ऑल हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स नीड नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर कोविन प्लेटफॉर्म. कोविन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं दे नीड टू रजिस्टर, बट गवर्नमेंट ने अभी के लिए फिलहाल ऐसा कहा है जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, दे डू नॉट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ फ्रॉम कोविड प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू क्रिएट द यूनिक हेल्थ ID. नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज कोविन प्लेटफॉर्म. तो आज आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे एक कोविन प्लेटफॉर्म क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अभी के लिए गवर्नमेंट इज ऑल प्रिपेयर. मैन्युफैक्चरर विल ट्रांसफर द वैक्सीन टू 4 लार्ज डिपो एट करनाल, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. So all the necessary infrastructure requirements are being arranged so that vaccine can be rolled out easily. So by 13, government is planning to roll out the COVID-19 vaccine for emergency use authorization. जितनी भी लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, उन सब पर हेल्थ मिनिस्ट्री काम कर रही है इन ऑर्डर टू गेट द फास्टर रोल आउट ऑफ COVID-19 वैक्सीन, जिसके लिए कोविन नाम का एक एप्लीकेशन और एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी प्रिपेयर किया गया है. तो कोविन becomes very important for your competitive exams. तो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोविन के बारे में लिख करके बताएंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर is
गेटिंग द रेन ऑफ बिलियनियर्स। एक्चुअली ये 3 आर्टिकल्स फ्रंट पेज पे दिए होते जिसको मैंने कंबाइंड कर दिया सो दैट वी कैन रिलेट ईच आर्टिकल विद ईच अदर एंड वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के, कॉम्पिटिटिव राइवलरी को लेकर के, और जिस तरह से कोविड-19 ने इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर को अफेक्ट किया है और इकोनॉमी को अफेक्ट किया है, उन सब को लेकर के, क्योंकि कोविड-19 के बाद ऐसा हुआ है कि पब्लिक इज़ मोर health conscious, they are more aware about the health related issues, and because of this pandemic, pharma and healthcare space is the largest breeding ground of India's billionaire promoters. The sector created 7 billionaires promoters in करंट ईयर 2020 थैंक्स टू द पेंडेमिक इंड्यूस ग्रोथ। पेंडेमिक की वजह से जितने भी सेक्टर अफेक्ट हुए हैं, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, उसको अगर हम छोड़ दें तो हेल्थ केयर सेक्टर वॉज द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वैक्सीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ गेटिंग द रेनिंग ऑफ न्यू बिलियनियर्स, and this is the list of 7 billionaires that recently added into financial year 20 or current year 2020. You do not need to mark up this particular list, you just need to go through it once. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। सेंटर टू लॉन्च ई प्लेटफॉर्म टू सेल नॉन कोर असेट्स। सेंटर टू लॉन्च ई प्लेटफॉर्म टू सेल नॉन कोर असेट्स। हमने डिस्कस भी किया है, कई बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब इस बार इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बजट था उसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रैटेजिक सेल के बहुत एम्बिशियस टारगेट रखे थे। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के कई सारे स्ट्रैटेजिक सेल का डिस्कशन किया था बजट में और टारगेट्स रखे थे, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑल्दो सम स्ट्रैटेजिक सेल्स आर नॉट गेटिंग मैटेरियलाइज्ड, बट आफ्टर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिकवरी now government is on high speed in order to achieve all those targets, and because of that government is all set to launch an online platform to sell the surplus land and properties of public sector undertaking as a part of its asset monetization drive. तो जितना भी जो स्ट्रैटेजिक सेल का टारगेट सेट किया गया था इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में, अब गवर्नमेंट उसमें मैक्सिमम रियलाइज करना चाह रही है। हालांकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिक सेल्स थे, चाहे वो BSNL, MTNL, BEML, एयर इंडिया, सबको लेकर वो पोस्टपोन हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडमिक। बट नाउ countries are actually getting over from this pandemic, so government has also started to speed up this process, and it is estimating that this would help to monetize assets worth ₹10,000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट अपने जितने भी स्ट्रैटेजिक सेल्स हैं, जिन जिन पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट अपना स्ट्रैटेजिक पोर्शन सेल करना चाह रही है, उन सब को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द स्टेट वन MSTCs टू सेट अप एन ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑक्शनिंग नॉन कोर असेट्स ऑफ PSUs अकॉर्डिंग टू द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जितने भी स्टेट वन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो एक्चुअली स्ट्रैटेजिक सेल की प्रोसेस में जा रही हैं, उन सब को कॉल किया गया है कि वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अब ई-टेंडर इन्वाइट करें, ई-बिडिंग की प्रोसेस में जाएं, जिससे कि पेपर वर्क कम बहुत होगा, जो प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक सेल की वो स्पीड अप होगी, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, करप्शन रिड्यूस होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने के लिए ponder किया, and this platform will work as a one-stop shop for all those keen on acquiring the properties and the land assets of PSUs। तो यहाँ पर सेलर एंड बायर दोनों की मीटिंग इंश्योर करी जाएगी। ऐसे PSUs जो अपनी सरप्लस लैंड को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करना चाह रहे हैं, दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ इनटू this particular online platform, and apart from those buyers who actually wants to buy the land assets of PSUs, they can also register themselves into this portal and can negotiate a better deal, and it is expected to be operational in the month's time and might be announced in this particular financial year budget। तो आगे वाला जो बजट है उसमें हो सकता है इस पर्टिकुलर ई प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट किया जाए। बेसिकली इस ई प्लेटफॉर्म को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, दैट इज DIPAM, विल मैनेज। तो कोऑर्डिनेट करेगा कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, एंड वी ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ all public sector undertakings and government assets।
तो इसमें इनिशियली DIPAM will coordinate all the such assets which government has previously approved for strategic disinvestment. तो गवर्नमेंट ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट जिनको अप्रूवल मिल चुका है उनको अभी के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर किया जाएगा एंड बायर्स कैन एक्चुअली गो फॉर ई-बिडिंग प्रोसेस। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने संडे को प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू किया है BEML के लिए, एंड विच इज एक्चुअली नॉन कोर एसेट ऑफ द कंपनी वुड बी हाइव्ड ऑफ एंड विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सेल। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट इसको टैप करेगी, यूज़ करेगी इन ऑर्डर टू एक्चुअली मेटेरियलाइज द ऑल pending strategic disinvestment that are pending since years, and it will be a very efficient move from the government side as per the government officials. तो हो सकता है इस बजट में हमें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले, नाम क्या होगा इसका, कैसे फंक्शन करेगा, then we will discuss all such things. So this is the fast and this is the key facts about this particular fast track online platform in order to speed up the process of strategic disinvestment. E-bidding platform to be set up by MSTC in coordination with DIPAM. PSU's land properties worth about 600 crore to be put for the sale initially. Later on this value may increase. Only asset valued above 100 करोड़ टू बी लिस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ऐसे एसेट जो जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है या ऐसे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का एसेट इन्वॉल्व है, केवल उन्हीं का अभी इसमें उन्हीं की लिस्टिंग करी जाएगी और केवल 600 करोड़ तक के, मिनिमम 100 करोड़ और मैक्सिमम 600 करोड़। लेटर ऑन दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। रिजर्व प्राइसेस टू बी सेट अप बाय asset valuer, that is a consultant for that particular PSUs. Buyer will registered with MSTC in order to take part into this auction process. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में गेट आत्मनिर्भर नच। तो जो आगे आने वाला बजट है उस बजट में भी हमने डिस्कस किया था कि आगे आने वाले बजट में एक्सपर्ट्स ने भी ये बोला है और गवर्नमेंट का भी ये इंक्लिनेशन है कि आगे आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जिस पर्टिकुलर पेस में चल रही है इस समय, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पब्लिक के हाथ में इनकम आएगी, मनी आएगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी रिवाइव करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी, दैट विल लीड्स टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फर्दर लीड्स टू द इनकम जनरेशन, डिमांड जनरेशन एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। सो इन द फोर्थ कमिंग यूनियन बजट, experts are expecting to build on the Atmanirbhar package announced in 2020, and there is likely to be emphasis on increased infrastructure spending on building roads, maritime and rail linked economic development। हालांकि इस तरह की न्यूज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स ने भी और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, दे ऑल वर डिमांडिंग फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का भी फोकस इस बार का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं, इकोनॉमी में जो ऑपरेशनल हर्डल्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। और इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस होगा, दैट विल फोकस ऑन बिल्डिंग रोड्स एंड मैरीटाइम रेल लिंक्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि इंटरनेशनल बिजनेस को और डोमेस्टिक बिजनेस को, ट्रांसपोर्टेशन को भी ईज आउट किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फॉर इंस्टांस हैज़ प्रपोज्ड to develop additionally 60,000 kilometers of national highways in the next 5 years, of which 2,500 kilometers are expressway and access control highway। इसी तरह से अलग अलग जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, सब ने एक एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट को सबमिट किया है, एंड द गवर्नमेंट वुड नीड टू प्रोवाइड फॉर एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ दिस, though it would continue to depend on the private sector for much investment। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी इंश्योर करी जाएगी, बट गवर्नमेंट इस बार कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, दे ऑल आर डिमांडिंग एन एम्बिशियस बजटरी एलोकेशंस। इस बार का फोकस एनर्जी, IT, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट में ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इकोनॉमी इज
इकोनॉमी इन गुड हेल्थ ड्यू टू वैक्सीन। फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्यूसडे को एक कहा है कि वैक्सीन की वजह से एक पब्लिक में, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ है, एक जो अनसर्टेनिटी थी वो अनसर्टेनिटी रिड्यूस हुई है। एंड ही फर्दर सेड इम्पेंडिंग वैक्सीनेशन ड्राइव इन वेरियस कंट्रीज कपल्ड विद अ सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर एंड हेल्प्स द इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन H2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो जो अनसर्टनिटी थी वो रिड्यूस हुई है। जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जस्ट लाइक ट्रैफिक, रेल में ट्रैफिक, मेट्रो में ट्रैफिक जो होता है, जो टोल कलेक्शंस होता है, वो सब इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग। बाय बिकॉज दिस अनसर्टनिटी इज डिक्रीजिंग, नाउ पीपल आर डिमांडिंग मोर, डिमांड इज इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन अ हाई पेस ऑफ रिकवरी. And this comes day ahead of advanced estimate for gross domestic product GDP growth for financial year 21. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट क्लियर्स एयर ऑन कोवैक्सीन, सेज रिलाइड ऑन सेफ्टी डेटा. तो जितने भी ये न्यूज़ आ रही हैं, जितने भी ये रूमर्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी फास्ट अप्रूवल कर रही है, बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स को गवर्नमेंट ने वॉयलेट कर दिया है इन ऑर्डर टू गेट द फास्टर अप्रूवल, उन सब को खारिज करते हुए गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को ये क्लियर किया है कि द गवर्नमेंट इज़ वेरी much cautious about the safety of vaccine, and whatever government is doing, whatever approval government is giving, all are relied on a safety data. जो 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर सेफ्टी डेटा को देख करके ही उन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल दिया है. देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज हैज़ बीन डन फॉर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ. तो जो भी रूमर्स आ रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रूमर क्रिएट कर रही थी कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम जब पार्टी आएगी तब हम वैक्सीन लगाएंगे, ऑल दीज रूमर्स हैज़ बीन वाइप्ड ऑफ बाई गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेटा और बहुत सारी मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स भी पब्लिक में शो करी हैं, हो सकते हैं पब्लिक में, पब्लिक पोर्टल्स पे उसको अपलोड कर दिया, सो दैट गवर्नमेंट, ऑल द पब्लिक और द एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट कैन एक्चुअली गो ऑन दैट पर्टिकुलर मीटिंग प्रोसीडिंग्स and information to get the clarity about the vaccine approval process. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Amazon was aware of talks with RIL for sale of retail assets बियानी. तो Amazon, फ्यूचर ग्रुप और RIL के बीच में जो टशल चल रहा है, बेसिकली RIL ने फ्यूचर के ग्रुप कुछ रिटेल के असेट्स को खरीदा था और अमेजॉन का ये कहना था कि अमेजॉन के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल था. अमेजॉन को इस पर्टिकुलर डील के बारे में बताया नहीं गया, एंड दिस डील इज एज पर द contract. This deal is anti-competitive deal, and future group cannot go ahead with such deal with RIL. तो उस पर कई बार, it's not the first time that Mr. Biani is saying that, कई बार फ्यूचर ग्रुप का स्टेटमेंट आया. फ्यूचर ग्रुप ने कहा है कि अमेजोन को पहले ये ऑफर दिया गया था, बट अमेजोन ने ये ऑफर डिनाई कर दिया. इसके बाद हमने रिलायंस से नेगोशिएशन स्टार्ट किया था, और अमेजोन वॉज फुली अवेयर अबाउट दिस टॉक विद RIL. जब भी बियानी फ्यूचर ग्रुप RIL के पास गया था पर्टिकुलर डील के लिए, तो अमेजोन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गए थे. एंड स्टिल दिस बैटल इज गोइंग ऑन, एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ बैटल इज बिगिन इन सिंगापुर. और अमेजोन ने इसको लेकर के बियानी पर, मिस्टर बियानी और फ्यूचर ग्रुप पर फाइन इम्पोज करने के लिए आर्बिट्रेशन पैनल में केस फाइल किया था. तो अभी फिलहाल के लिए केस चल रहा है, बट मिस्टर बियानी का एक अपना स्टैंड है कि पहले ये डील के लिए ऑफर अमेजोन को दिया गया था. अमेजोन ने जब रिजेक्ट कर दिया, देन वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन विद RIL. बट अमेजोन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. लेट्स सी कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में केस आगे जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.